सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Statistics and program implementation, women comprise as much as 13.76% of the total entrepreneurs in India. Need and challenges of the women expansion into new markets, venturing into digitalizing and building supply chain linkages to complete the cycle. The key takeaways of the Hausla program are capacity building and mentoring program and NIMS. Access to hassle-free credit, and to this very happy to include Mission Youth, JNK and JNK Bank. Point is facilitating their products and services through e-commerce platform which will give you with Flipkart on the lines of the Flipkart MOU. Marketing support is the 4th point which we intend to visions to showcase the products. To participate, also physical forms for the registration will be kept at the respective DC offices. Once the application training for 27 hours and further to this, 50 shortlisted women entrepreneurs will be given one-to-one mentorship. The eligibility, I would also like to mention for this participation is any woman resident of JNK who is above 18 years of age, owning more than 33% of the enterprise, and have register for this program as early as possible and reap the benefits by collaborating with industry leaders and understand the overall TPO, inspiring women entrepreneurs and businesses. A very good morning to you all. I'm indeed very happy and honored to be a part of this event, Hausla, Inspiring Her Growth, undertaken by JNK Trade Promotion Organization. Another line of jewelry was designed called the Art of Paper Mache designs were recreated on 22 karat gold selection at an international fashion show in London. Another true achievement in Jewelry Export Council of India for the one year were nominated, and when I gave my presentation to the August, God working with Aditya Birla Group, looking after the logistics for JNK. During my journey, I also came across those who were not happy to see me taking my tiny steps of success. They often them too, for they taught me resilience. They taught me faith in God and to be happy forever, manifold. I believe in learning, imbibing, and in JNK, and I've had the privilege of being a member of this prestigious. I would like to take this opportunity to appreciate हौसला रख कि तेरे लबों पे अब कामयाबी की मुस्कुराहट आएगी, हौसला रख कि तकदीर बनेगी, हौसला रख कि ये ख्वाब अब तेरे रहबर यहाँ तेरे साथ मौजूद होंगे। शुक्रिया। Thank you so much, Neetu ji, for sharing your journey and your words of wisdom. कुछ दिन पहले जेके टीपीओ के एक वेबिनार में हमारी मुलाकात सिटी एंजल स्टार स्कूल की फाउंडर मिस अतिका वानी जी से हुई। उनकी कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है
कि हम चाहते हैं कि आज इस मंच के द्वारा वो आप to tell about my journey, which was full of challenges and the way to success. मेरा नाम मिस अतीका मानी है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा ब्लॉक रामहाल के एक गांव मिलगांव से ताल्लुक रखती हूँ। सब लोग हैं आज यहाँ पे। I'm really feeling overwhelmed. They will ask me, why are you overwhelmed? क्या ऐसी बहुत बानू और रोज़ाई। This SME forum was founded in 1st May 2011 by Sushma ji, here again a woman, herself a woman, and की है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में 7% से ज़्यादा है। इनॉर्मिटी ऑफ चैलेंजेस में हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक विलेज में अलग है। कई बार चीज़ें एलजी साहब को सीएस साहब डायरेक्शन देते हैं हर एक स्कीम के लिए कि ये पंचायत तक जानी चाहिए। बिकॉज हमारा जो इंडिया एसएमई फोरम है एलजी ऑनरेबल एलजी सर ने हमें पहले दिया था मार्च में। वी रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ इट, आई रियलाइज द वुमेन इन द स्टेट हैव सब्सटेंशियल पोटेंशियल। हमें वक्त है आगे बढ़ने की और इसको स्पीड अप करने की। आप सबने सुना है कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम में जो सोच होती है और जो हम करते हैं उसमें गैप रह जाता है। और एलजी साहब हमेशा ये बोलते हैं कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, और ऐसा हम लोग अनाउंसमेंट किया था, वो इम्प्लीमेंट हो गया। 1 महीने के अंदर अनाउंस किया गया और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया गया। आज एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आज से करीब 2 साल पहले मैं एक छोटे से गांव में गया था। वहाँ पे एक वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप था, तो उन्होंने मेरे को ब्रीफ किया कि वो क्या काम कर रही हैं, और वो 10,000 रुपया बोल रही थी कि हमें मिल जाए, हमारा इनकम दुगना हो जाएगा। जिससे आपका ये जो हौसला है, इसकी जो दशा है वो ठीक होगी और इससे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें आपको मिलेंगी। नंबर 2, आपको वो रास्ते बताएगा और वो उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएगा जहां पे आपको क्रेडिट लिंक कहां से होना है, क्या होना, उसका पूरा रास्ता बताएगा ताकि आपको क्रेडिट के लिए तरसना ना पड़े। तीसरा, आपकी ट्रेनिंग, क्योंकि मार्केट चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं तो उसमें जब तक आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तो तब तक आपको कोई भी वेंचर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए उसकी आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपको बताया जाएगा कि किस किस्म की ट्रेनिंग के साथ आपको एक वेंचर स्टार्ट करना है ताकि उसको एक सक्सेसफुल वेंचर आप कहला सके। हमारे एडवाइजर जनाब बशीर अहमद खान साहब, इस यूटी के चीफ सेक्रेटरी श्री अरुण मेहता जी, जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण तथा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में ऐतिहासिक शुरुआत आप लोगों ने करी है। और जब वर्तमान में कोई ऐतिहासिक शुरुआत होती है तो मुझे लगता है इतिहास के कुछ धागे अपने आप खुलते हैं। इसलिए थोड़ा मैं ऐतिहासिक तथ्यों को जम्मू कश्मीर के आपके बीच रखना चाहूँगा। प्राचीन काल से, यानी जब से जम्मू कश्मीर के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं, उस समय से लेकर के इस समय से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक इस यूनियन टेरिटरी में महिलाओं ने हर क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों को छुआ वह इतिहासकारों को भी हैरान कर दी। उन प्राचीन दस्तावेजों को जिन लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने का अवसर मिला है, और उसका अगर निचोड़ या सार में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि नहीं है जिसमें जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने प्रतिष्ठा नहीं अर्जित की है। राज तरंगिणी से लेकर 1935 में प्रकाशित आर.एस. पंडित की किताब में एक बात सामान्य तौर पर पढ़ने को मिलती है। जम्मू कश्मीर के समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी, उनका जो सोशल स्टेटस था, वह देश के अन्य हिस्सों से कहीं बेहतर था। अभिनव गुप्त का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। उन्होंने लिखा है
कि सिर्फ शिक्षा, दर्शन तथा सामाजिक आयोजनों में ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भी उनकी शक्ति, उनका सम्मान तथा उनका अधिकार पुरुषों के बराबर था। अफसोस की बात यह है कि समय के साथ उनकी रचनाएं, उनके अधिकार भी विलुप्त होते गए और आज बहुत कम ऐसी किताबें या लिखित दस्तावेज मिलते हैं जिनमें उनके गौरवपूर्ण जीवन की पूरी दास्तां कही गई है। मैं आप लोगों को इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाना चाहूँगा। 1926 में पहली बार श्रीनगर में कुछ अंग्रेज महिलाओं के सहयोग से WWT वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य जम्मू कश्मीर की महिलाओं को एजुकेट करना तथा विमेन एंटरप्रेन्योर बनाना था। महाराजा हरि सिंह जी के जमाने में भी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था और उन्होंने WWI वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन दोनों संस्थानों ने आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक प्रगति को एक नई ऊंचाई दी थी। 1931 में इसी श्रीनगर के एसपी कॉलेज में 500 लड़कों के बीच एकमात्र लड़की विमला कौल ने एडमिशन दिया था और विमला जी के उस पहले कदम के बाद यहाँ की बच्चियों ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1947 को अगर हम याद करें तो हमने महिला शक्ति और उनका पराक्रम भी यहाँ देखा है, जब पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से मुकाबला करने के लिए विश्व की पहली महिला गुरिल्ला सेना जम्मू कश्मीर में बनी थी। महिला सशक्तिकरण का यह बहुत बड़ा उदाहरण था, को इकट्ठा कर रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक पुरानी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की फाइल में देख रहा था, उस समय टिम्बर और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री में ज्यादातर पुरुष काम करते थे और उस जमाने में सालाना लगभग 2.5 करोड़ रुपए का कारोबार होता था। लेकिन 3 मुख्य कारोबार में महिलाओं का वर्चस्व था, जैसे पश्मीना शाल, सिल्क और हैंडीक्राफ्ट। आप सोचिए 1946-47 में यहाँ की इंडस्ट्री ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की शाल बेची थी, 97 लाख रुपए के सिल्क के उत्पाद और 3 करोड़ 75 लाख रुपए के अन्य हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद। और यह जिक्र करना इसलिए जरूरी है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान यहाँ की महिलाओं का था। मित्रों, पुराने जमाने में घुमंतु कारोबारी ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन कहिए या फ्लिपकार्ट कहिए हुआ करते थे और इंडस्ट्री में भी उनकी भूमिका, या मैं कहूँ कि देश की और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को निश्चित रूप से आने वाले समय में बढ़ाएगा। मार्च में मैं एक कार्यक्रम इसी सभागार में आया था, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कन्वोकेशन का समारोह था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 158 गोल्ड मेडलिस्ट में से 105 बच्चियां थी और हर डिपार्टमेंट, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, फूड टेक्नोलॉजी हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बच्चियों का था। और मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि जम्मू कश्मीर की हमारी बच्चियां बच्चों से ज्यादा टैलेंटेड हैं और उनकी शक्ति को मैं नमन करता हूं। और उसके कुछ डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे देश में सामान्य तौर पर दिन के 4 घंटे महिलाएं घर के अंदर या बाहर उन कामों को करती हैं जो घर के सदस्यों की सेवा के तौर पर होता है। वहीं दूसरी ओर परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो घर के काम यानी डोमेस्टिक वर्क में मात्र 25 मिनट समय लगाते हैं और यह ट्रेंड ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में है। लेकिन घर के काम के बावजूद महिलाएं हमारी नारी शक्ति अर्थव्यवस्था की मजबूत आधार भी है। केंद्र सरकार की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2018-19 के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क फोर्स 59.6%, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 57.4%। वही शहरी इलाकों में 54.7% महिलाएं या तो रेगुलर मजदूरी या फिर नौकरी चाकरी या अपना काम कर रही हैं और उनकी तुलना में
मात्र 47.2% पुरुष रेगुलर नौकरी में हैं। अभी साहिद चौधरी ने कुछ फिगर बताई है, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। आगे उसे कैसे हम बदलेंगे इसकी योजना लोग बना रहे हैं, लेकिन ठीक उलट इसके कुछ आंकड़े दूसरे भी हैं जिसमें आज निश्चित रूप से बदलाव की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 6वें इकोनॉमिक सर्वे का जो आंकड़ा देखा, उसके मुताबिक देश में जितने भी औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट हैं उसमें 13.41% ओनरशिप महिलाओं के पास है। यहाँ तक कि जो हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम इस्टेब्लिशमेंट हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की होती है, उसमें भी महिलाओं की ओनरशिप का प्रतिशत 21.89% ही है, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 77.74% हो सकता है। 7वीं रिपोर्ट जिस पर अभी काम चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत आंकड़ों में फेरबदल हो जाए, लेकिन अभी इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत महिलाओं को इस दिशा में पुरुषों के बराबर लाना है, जो भी हमारे मुख्य सचिव ने आपके बीच कहा है। लेबर ज्यादा और ओनरशिप कम, इंडस्ट्री लीडरशिप में उनकी भूमिका की उनकी हिस्सेदारी निश्चित रूप से असंतोषजनक है, लेकिन मेरा विश्वास है कि सही नीति, साफ नियत से इस खाई को हम निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के मुताबिक इस गैप की वजह से, यानी महिलाओं की लीडरशिप तथा ओनरशिप में संख्या कम होने की वजह से दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफी नुकसान हुआ है। 2019 में यह एडवांस इकोनॉमी के सकल घरेलू उत्पाद के 10% से लेकर साउथ एशिया में 30% तक नुकसान पहुंचा रहा है। उद्यमियों तथा आकांक्षी महिलाओं के लिए ये हौसला स्कीम प्रारंभ की है। पिछले कुछ महीनों से पूरी टीम योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम कर रही है और किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की महिला उद्यमियों को नेशनल तथा इंटरनेशनल बाजार उपलब्ध कराए जाएं, इस पर काफी इन्होंने मेहनत की। उनके लिए आर्थिक सहायता तथा योजनाओं की जानकारी कितने प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाए और किस प्रकार के ट्रेनिंग देकर मार्केट लिंकेज तैयार करके उन्हें सक्षम और सफल उद्यमी बनाया है। और इन कार्यक्रमों की डिटेल्स आप सभी ने देखी है। मुझे लगता है बहुत ही साइंटिफिक ढंग से काम करके ये प्रोग्राम बना है, जो जम्मू कश्मीर में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। मैं मिशन यूथ के सीईओ साहिद चौधरी को भी बधाई देना चाहता हूँ। कोरोना की वजह से मार्च में जिस तेजस्विनी स्कीम की घोषणा की गई थी उसमें विलंब हुआ है, लेकिन आज औपचारिक रूप से उन्होंने उसके बारे में आपको बताया है और लॉन्च की तारीख भी इसके साथ ही बताई है। मुझे लगता है जो मूल रूप से हमें देखने की जरूरत है, ये सरकारी मकड़जाल में योजनाएं न फंसे, क्योंकि सरकार का कानून और सरकारी प्रक्रिया जिसका जिक्र हमारे चीफ सेक्रेटरी ने किया, कैसे हम लोगों की सही में सहायता कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं इसका हम ध्यान रखें। मुझे खुद याद है, मैं 2004 में लोकसभा का चुनाव हार गया था, पूर्व सांसद हो गए। 2006 की पेंशन मुझे मिल गई थी। 2007 में किसी कारण से मैं बाहर चला गया। 8 में जब आया 2007 की पेंशन लेने गया तो मुझे कहा, 8 में मैं सामने खड़ा था, मुझे कहा गया कि आप सर्टिफिकेट दीजिए कि 2007 में आप जिंदा थे। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो कानून उनसे कैसे हम लोगों को बाहर निकालें, इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से लोगों की हम मदद कर पाएंगे। यह स्वरोजगार की इच्छुक महिलाओं को मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए, इसकी व्यवस्था हम सबको करनी होगी। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई थी उस वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया है, जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमी इकोसिस्टम को मजबूत करने की बेहद जरूरत है और उसके लिए वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग दोनों की आवश्यकता है। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि इसकी कोई कमी नहीं होने दी है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन और आईटी ट्रांसफॉर्मेशन के विजन पर हम सब काम करना चाहते हैं, उसमें हमारी बहनों को अपना उद्योग चलाने और उसे विकसित करने का पूरा मौका मिले, ताकि वह इस यूनियन टेरिटरी के समग्र विकास का अभिन्न अंग बन सके। इंडस्ट्रियल स्कीम के बारे में रंजन ठाकुर जी ने बताया, इसलिए मैं उसमें समय नहीं लूंगा। सबसे पहले प्राथमिकता क्या था, महिला और पुरुष उद्यमियों के बीच जो गैप है, जो खाई है,
उसे योजनाबद्ध तरीके से भरा जाए, इसकी एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है। और वर्तमान में विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़ी जो महिलाएं हैं उन्हें प्रोत्साहित करना और उनका हौसला बढ़ाना, जैसा अनु ठाकुर जी ने कहा, कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। पिछले अक्टूबर महीने में एक सप्ताह का 2 अक्टूबर को हम सबने बैक टू विलेज 3 कार्यक्रम शुरू किया था, उसका जिक्र मेहता जी ने किया। इसमें एक कार्यक्रम रखा गया था कि हर पंचायत से 2 यूथ हम आइडेंटिफाई करेंगे और वो अपना कुछ काम करें, उसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो एक अंदाज था कि 4290 पंचायतें हैं, 10,000 नौजवान चिन्हित होंगे। लेकिन मोटे तौर पर आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 20,000 के आसपास लोगों ने आर्थिक सहायता प्राप्त की है, वो अपना खुद का काम कर रहे हैं और उसमें 4500 महिलाएं। इस वर्ष जो हमने लक्ष्य तय किया है कि ऐसे 50,000 नौजवान हैं जिसमें कम से कम 20,000 महिलाएं हों, ऐसा एक योजना बना करके हमें काम करना है। उनको वित्तीय सहायता भी देनी है और उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है। जैसा किसी ने कहा कि जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बने, उस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि केवल उस कार्यक्रम के चलते जब Thank you, sir, for your guidance and blessings for the program. It is under your vibrant leadership that new energy has been infused in entire Entrepreneurship's ecosystem of JNK. I take this privilege to deliver the kindly be seated and high. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.